خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم پرفضل اور جلالی نام میں میں شائستہ اختر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، خداوند یسوع المسیح نے اپنی مبارک زبان سے یوں فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی بھی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی ان تعلیمات پر عمل کریں، اور ابھی وقت ہے خدا کی پرستش اور حمد و ثنا کا۔ تو ابھی ہم مس روپ جارڈن کی خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت گیت سنیں گے۔
جی ناظرین، ابھی آپ نے یہ گیت سنا اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس پرستش کے وسیلہ سے خوب برکت پائی ہے۔ اور ابھی وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا، تو آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں۔ جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ انکل ڈیوڈ، آپ بائبل مقدس میں سے کلسیوں 3 باب کی یہ خوبصورت آیت کیوں دہرا رہے ہیں؟ پنکی بیٹا، یہ خوبصورت آیت میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے۔ یعنی جب خدا ہمارے سارے گناہ معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ جی انکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ معافی کے بارے میں پطرس اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ قابل غور ہے، اور دوسروں کو معاف کرنے کے بارے میں ان کی تعلیم بہت خوبصورت ہے۔ جی ہاں پنکی بیٹا، وہ خوبصورت تعلیم ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ ایک روز پطرس نے یسوع سے پوچھا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی بار اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ پطرس نے سوچا تھا کہ کسی کو 7 بار معاف کر دینا کافی ہوتا ہے۔ لیکن یسوع نے اسے کیا سکھایا؟ انکل ڈیوڈ، یسوع مسیح نے فرمایا ہمیں 7 بار سے کہیں زیادہ بار معاف کرنا چاہیے، یعنی ہمیں دوسروں کو بار بار معاف کرنا ہے۔ جی ہاں، خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل پیش کی۔ انکل ڈیوڈ، کون سی تمثیل پیش کی؟ بیٹا جی، کلام مقدس میں لکھا ہے، ایک بادشاہ نے اپنے نوکروں سے حساب لینا شروع کیا۔ جب نوکر اس کے پاس آئے تو ان میں سے ایک ایسا نوکر بھی تھا جس نے اس کی بڑی رقم ادا کرنی تھی، اور وہ نوکر قرض ادا نہ کر سکا۔ اس لیے بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ جب نوکر نے یہ سنا تو بادشاہ کے قدموں میں گر کر منت کرنے لگا کہ اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ بادشاہ کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اس کا تمام قرض معاف کر دیا۔ وہ نوکر بہت خوش تھا۔ لیکن گھر جاتے ہوئے اسے راستہ میں اس کا ایک دوست مل گیا جس نے اس کا بھی کچھ قرض ادا کرنا تھا، لیکن وہ اس سے جھگڑنے اور کہنے لگا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ اس کا دوست اس کے قدموں میں گر کر منت کرنے لگا، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ لیکن اس نوکر نے اس پر رحم نہ کیا اور نہ ہی مہلت دی۔ اس نے اسے اپنے دوست کو قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک سارا قرض ادا نہ کر دے وہیں رہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے اس نوکر کو جسے معاف کیا گیا تھا بلا لیا۔ بادشاہ نے اس نوکر سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے تجھے اس لیے معاف کیا تھا کہ تو نے میری منت کی تھی کہ تجھے بھی لازم تھا کہ جیسے میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے دوست پر رحم کرتا۔ اس پر بادشاہ نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کر دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرے قید میں ہی رہے۔ ناظرین، ہمیں کتنی بار اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کو معاف کرنا چاہیے؟ کیا 7 بار یا پھر 70
यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें उन्हें बार बार मुआफ करना है, क्योंकि हमारे आसमानी बाप ने हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ किया है। हमें उन तमाम गलतियों और कसूरों को जो लोग हमारे खिलाफ करते हैं मुआफ करना चाहिए। जी हाँ, जब कोई आपके साथ ज्यादती करे तो उन गुनाहों को देखें जो खुदा ने आपको मुआफ किया। अंकल डेविड, हमें दूसरों को कितनी बार माफ करना चाहिए? पिंकी बेटा, हमें दूसरों को बार बार मुआफ करना चाहिए, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने हमें यही तालीम दी है। खुदा ने हमारे कितने गुनाह माफ किए हैं अंकल डेविड? बेटा जी, खुदा ने हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ किया है। अंकल डेविड, खुदा हमें कितनी बार माफ करता है? बेटा जी, खुदा हमें हर बार मुआफ करता है जब हम उससे मुआफी की दरख्वास्त करते हैं। अंकल, हम अपने गुनाहों को मुआफी के लिए शुक्रगुजारी कैसे पेश करते हैं? बेटा जी, जब हम दूसरों को मुआफ करते हैं तो हम खुदा की शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से भी कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मज़मून है इकरारुल ईमान की ज़रूरत। इसमें हम सीखेंगे, जब हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो खुदा के सच्चे कलाम पर कायम हैं, तो फिर खुदा क्या चाहता है कि हम करें, और हम किस तरह उनके साथ जो खुदा के सच्चे कलाम पर कायम हैं शामिल हो सकते हैं, और खुदा हमें क्या करने का हुक्म देता है अगर कुछ लोग जो हमारी कलीसिया के मेंबर नहीं हैं हमसे हमारे ईमान के मुतालिक दरियाफ्त करते हैं। आइए सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे इकरारुल ईमान की ज़रूरत। और आज का हमारा सवाल है, जब हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो खुदा के सच्चे कलाम पर कायम हैं, तो फिर खुदा क्या चाहता है कि हम करें। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से इसका मुतालिया करते हैं। यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत। यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। यूहन्ना 17वां बाब 20वीं आयत व 21वीं आयत। मैं सिर्फ उन ही के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उसके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। इमाल 2 बाब उसकी 41वीं आयत से 47वीं आयत। ईमानदारों ने शागिर्दों की रहनुमाई में एक जमायत तश्कील दी। पहला यूहन्ना 1 बाब और उसकी 3री आयत। और जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम भी उन सब चीज़ों के साथ शामिल हो जाएं जो खुदा के सच्चे कलाम पर कायम हैं। और मज़ीद जानेंगे हम किस तरह उनके साथ जो खुदा के सच्चे कलाम पर कायम हैं शामिल हो सकते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। कुलसियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। मसीह के कलाम का अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें गाओ। रोमियो 1 बाब 11वीं व 12वीं आयत। क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बाइस तसल्ली पाऊँ जो तुम में और मुझ में दोनों में है। गलतियों 6 बाब और उसकी 2री आयत। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। इफसियों 4 बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत। एक ही बदन के अज़ा होने के नाते हम मिलकर मसीह में रफ़ाकत के वसीला से मजबूत होते जाते हैं। हमने कुरान के कलाम में से सीखा, हम एक दूसरे की रफ़ाकत में परस्तिश करने और लगातार खुदा के कलाम का इकट्ठे मुतालिया करने से शामिल होते हैं। और मज़ीद जानेंगे
खुदावंद के कलाम में से। इमाल पहला बाप और उसकी 14वीं आयत। वो सब एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। इमाल दूसरा बाप और उसकी 42वीं आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। पहला तिमोथी दूसरा बाप और उसकी पहली आयत से 4थी आयत व 8वीं आयत। पौलुस मसीहियों को नसीहत करता है कि वो एक दूसरे के साथ पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। याकूब 5वां बाप और उसकी 16वीं आयत। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के वास्ते दुआ के ज़रिए रफ़ाकत में शामिल होते हैं। और आइए मज़ीद जानने के लिए कलाम मुक़द्दस में से इसका मुतालिया करें। यूएल पहला बाप और उसकी 3री आयत। तुम अपनी औलाद से उसका तज़किरा करो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे। यूहन्ना 21 बाप और उसकी 15वीं आयत। तू मेरे बर्रे चरा। मरकस 10वां बाप और उसकी 14वीं व 15वीं आयत। बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। दूसरा तिमोथियस 3रा बाप और उसकी 15वीं आयत। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। इमसाल 22वां बाप और उसकी 6ठी आयत। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम इकट्ठे काम करने से एक दूसरे की रफ़ाकत में शामिल होते हैं ताकि वालिदैन की उनके बच्चों को खुदा का कलाम सिखाने में मदद करें। और इसके बारे में मज़ीद जानते हैं खुदावंद के कलाम में से। मत्ती 28 बाप और उसकी 19वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मरकस 16वां बाप और उसकी 15वीं आयत। तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। इमाल 8वां बाप और उसकी 4थी आयत। बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। फिलिपियों 4था बाप 14वीं आयत से 16वीं आयत। फिलिपियों ने पैसे भेजे ताकि पौलुस अपना पूरा वक्त खुदा के कलाम की खिदमत में वक्फ कर सके। हमने आज के कलाम में से सीखा, हम इकट्ठे काम करने से एक दूसरे की रफ़ाकत में शामिल होते हैं ताकि तमाम लोगों तक अंजील की मुनादी की जा सके। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी तमाम दुआया दरख्वास्तें हम तक भेजते हैं और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में बड़ी जानफिशानी के साथ पेश करती रहती है और वो कादिर मुतलिक उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो अभी तक अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, बल्कि अपनी इल्तिजाएं इसी तरह से खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें। वो कादिर मुतलिक खुदा अपने वक्त पर ज़रूर उनको जवाब देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके वसीला से खूब बरकत पाई है। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा की हमें अज़हद ज़रूरत है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। फ़ोन्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302 7891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।